अधिकारीगण और आज हमारे यहाँ इतनी तादाद में हमारी महिला अतिथिगण। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आज के इस कार्यक्रम में विभाग की ओर से आपका बहुत स्वागत है। आप सबको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि माननीय मंत्री महोदया के मार्गदर्शन में एवं मुख्य सचिव महोदया के निर्देशन में हमने ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष हम एक उत्सव के रूप में महिला सप्ताह मनाएंगे। 8 से 14 मार्च तक पूरे राज्य में हर ग्राम पंचायत स्तर तक हम इस सप्ताह को मनाएंगे और आज इस कार्यक्रम में ये समारोह जो है ये उस सप्ताह का उद्घाटन समारोह है। 2019 में इंदिरा महिला शक्ति के रूप में एक अनूठी पहल की। इससे महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार हर क्षेत्र में मदद मिल रही है। प्रदेश की हजारों बालिकाएं और महिलाएं निशुल्क कंप्यूटर और अकाउंटिंग प्रशिक्षण पाकर आईटी के साथ एक कामयाब भविष्य की ओर बढ़ रही हैं। इसके अलावा महिलाओं को स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी निशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। कौशल विकास के साथ महिलाओं को स्वरोजगार से सशक्त बनाने का काम भी इंदिरा महिला शक्ति के अंतर्गत हो रहा है। ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जिन्हें किसी कारण से पढ़ाई छोड़नी पड़ी, इन्हें शिक्षा सेतु योजना के माध्यम से फिर से शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। उन्हें हम चाहेंगे कि वे पुस्तक लेकर के पधारें और माननीय मंत्री महोदय और हमारे सभी अधिकारीगण, श्रीमती उषा शर्मा जी, officially from 1911, that is what I have read it. So every year we in NABARD also celebrate it, and this is the first occasion in which we had a chance to associate with Government of Rajasthan, particularly Ministry of Women Development, and we are grateful to you, Madam, for giving us an opportunity to associate with you in this program. Across the country today Women's Day is being celebrated, and we have also read very recently the budgetary announcements on the various schemes for women in Rajasthan. It is very nice and very encouraging to note that the state government has introduced or in the process of continuing various schemes which I am sure which will make the gender equality or gender gap in the state of Rajasthan very soon to be almost to reduce the gap and to take the state forward in these coming years. I have seen across the states, because last year also similar program I attended in another part of the state, and before that in another part of the state. All these states, the gap, the requirements are different, and according to the gaps, gender equality gap or women empowerment gaps, the programs are designed here, and Rajasthan, I am sure, will be taken forward with the right spirit. We have also, for the last couple of days, we have also seen a lot of success stories emanating from the various parts of Rajasthan, particularly the power decentralization and women empowerment in the local self-governments. It is very nice to note that many stories are being captured now, which is showing the stride of growth of women in the state of Rajasthan. We in NABARD also, from the day of inception of NABARD, we proudly tell that we are the development bank of the nation, and we got a mission, and our mission statement itself is Gaon Bade to Desh Bade. And Gaon Badane ke liye to we believe that women in the Gaon has to be developed first. And from the day of our inception itself, we have rolled out many programs which had become universally, some of them had become the largest, or some of them have become so intensive programs in women empowerment and development. Thank you for the kind invitation to speak here today. It gives me great pleasure in wishing you on the occasion of International Women's Day. May this day be the beginning of a new chapter in all our lives, a bright chapter. It is of course very, very ironic, Gurupji,
that we need to speak about women empowerment, because today we are outgunned, outranked, outnumbered and outflanked. And nevertheless, the point is that this room does not reflect reality. Unfortunately, it is very unfortunate that this room does not reflect reality. और उनके विश्वास का प्रेरणा स्रोत बन सकूं। लगभग 1 साल पहले मेरे गांव में ग्राम साथिन श्रीमती रुक्मणी ने हम कुछ महिलाओं को शुक्रवार के दिन जाजम बैठक नाम से महिलाओं की बैठक में बुलाया। इसमें मैं भी शामिल हुई और मुझे इस बैठक में महिला अधिकारिता विभाग की इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में पता चला। इस योजना में 25% यानी कि 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी के बारे में पता चला। योजना की जानकारी मिलते ही मैंने अपने घर परिवार में चर्चा की और महिला अधिकारिता विभाग झुंझुनू से संपर्क किया। मैंने इस योजना से 49,50,000 रुपए का ऋण आवेदन किया, जिसमें मेरे को 13,75,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई। इस ऋण से मैंने पीवीसी पाइप्स, मशीनें एवं टिन सेट का निर्माण करवाया। मेरे द्वारा झुंझुनू जिले में प्रथम सबसे बड़ी पीवीसी पाइप फैक्ट्री स्थापित की गई। इस फैक्ट्री से मैं झुंझुनू जिले के अतिरिक्त चूरू, सीकर, जयपुर, हरियाणा और बीकानेर में भी सप्लाई करती हूँ। मेरे द्वारा एक ऐसे क्षेत्र का चयन किया गया जिसमें महिलाएं ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। मुझे परिवार का भी पूर्ण सहयोग मिला। इस सब्सिडी की राशि से मुझे बहुत बड़ा संबल मिला और मुझे 1 साल तक की किसी भी प्रकार की किस्त एवं खर्चे की टेंशन खत्म हो गई। शर्मा और हम गांव बगरूखुर्द, जिला जयपुर से के रहने वाले हैं। हमारा जो काम है वो है हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट का, जो कि अपने वेस्ट मटेरियल जैसे कागज और जो हौजरी कपड़ा होता है उससे मिलके वो पेपर बनता है। साथ ही साथ जो हमारा वर्क है उसको करने के साथ साथ हमें क्या है कि हमारे जो गांव की महिलाएं है वो हमारे साथ में जुड़ी रहती है और हमें उनकी जो भी परेशानी है वो जानने का मौका मिलता है और उनका समाधान निकाल सके कि क्या क्या उन्हें परेशानियां आ रही है बाहर निकलने में, बाहर काम करने में। क्योंकि अगर एसएचजी की बात करी जाए तो जैसे नाबार्ड की और राजीविका की तरफ से जब हमारे गांव में एसएचजी बनाए गए थे तो उस टाइम में महिलाओं को बहुत डर था कि हम कैसे दूसरों के साथ बात करें, कैसे मतलब उनके साथ जुड़े। तो लेकिन आज की अगर 4 साल बाद की बात करी जाए तो आज महिलाएं खुद ही आगे से तैयार हो जाती हैं और हमारे साथ जुड़ के काम करने के लिए तैयार है। सब महिला अधिकारिता के जो आयुक्त हैं और सभी भाइयों बहनों, बहुत खुशी का मौका है आज कि आज हम महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण का एक वीक बना रहे। देखो दोस्तों, भाइयों और बहनों, एक्चुअली महिलाएं जो है वो हमारे समाज का मान है, जान है, सम्मान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर ये सशक्तिकरण क्यों मनाने की जरूरत पड़ी, हमें इसकी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। हमारे समाज में जो कुरीतियां रही पहले 1975 से, ये संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर ये महिला विश्व महिला दिवस मनाने का प्रारंभ हुआ था। उस समय अगर हम देखें मुड़ के तो हमारे समाज में, भारतवर्ष में भी कई कुरीतियां थी। दहेज प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, भ्रूण हत्या थी, लिंग अनुपात में डिस्टर्बेंस था। और देश के विकास के लिए ये माना गया कि अगर महिलाओं का विकास नहीं हुआ तो देश का विकास कभी हो ही नहीं सकता। उसको देखते हुए अब जब हम हमारे परिवारों की पृष्ठभूमि देखते हैं तो घर में अगर भाई तो किसी बच्चे का जन्म दिवस है तो हम महिलाओं की तरफ देखते हैं, भाई कार्यक्रम निपटाना है। अगर किसी का शादी है, त्योहार है, तो हम महिलाओं की तरफ देखते हैं, भाई कि ये प्रोग्राम निपटाना है। अगर भाई को हमें सार्थक बनाना है, जिसको हमें भरपूर जीना है,
और हम एक सैक्रिफाइस करते करते कहीं हम अपना अस्तित्व ना भूल जाएं, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी बातें बताई। श्रेया जी थी, के चौधरी जी थे, कुरूप जी थे, दास जी थे, कुछ महिला बेनिफिशरीज थी कि राज्य सरकार द्वारा कितनी योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। और मुझे जानते हुए और बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे 37 साल से ऊपर प्रशासनिक सेवा में हो गए हैं और मैंने राजस्थान में जो एक यात्रा देखी है महिला सशक्तिकरण की और उत्थान की, वो अपने आप में एक उदाहरण है। जब हमने शुरुआत की थी और आज में जिस तरह का सशक्तिकरण हुआ है, जिस तरह से महिलाएं आगे आई हैं, चाहे वो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, डेफिनेटली इसमें राज्य सरकार ने उनको उस उत्थान में, उस सशक्तिकरण में बहुत सपोर्ट दी है। चाहे वो बच्चियों का स्कूल का एनरोलमेंट है, वो भी हम देखते हैं तो इन कई वर्षों में एनरोलमेंट फिगर्स बढ़ी हैं। बच्चियां जो हैं बच्चों से अधिक नंबर लेके आती हैं। जब भी हम बोर्ड के रिजल्ट्स देखते हैं या किसी भी कक्षा के रिजल्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चियों ने बेटर परफॉर्म किया है। एक इंडिकेटर है, इससे हम बच्चों को अंडर वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जब मैं आंगनवाड़ी केंद्रों में जाती हूँ तब भी मैं देखती हूँ कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनकी संख्या जो है पहले के अनुपात से काफ़ी बढ़ गई है। जब हम MMR की बात करते हैं, IMR की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पे सराहा जाता है। तो ये अपने आप में कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि राजस्थान एक बहुत सही रास्ते, उन्नति के रास्ते बढ़ रहा है। जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था तो तब मैंने स्वयं सहायता समूह का नाम भी नहीं सुना था। जब मैं अजमेर ज़िले में गई तो ICDS में एक डिप्टी डायरेक्टर थी, उन्होंने इस स्वयं सहायता समूह का नाम लिया और तब से हमने जब एक सिलसिला शुरू किया और एक सपना था कि एक ऐसा समय आए जिसमें एक पूरे राज्य में स्वयं सहायता समूह जो है हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में बने और एक सैचुरेशन की स्थिति में बने और एक वो समय आए जब महिलाओं द्वारा बैंक अपना खुद चलाया जाए। तो ये देख के इस यात्रा को एक इतनी सुखद अनुभूति होती है कि जब भी मैं दौरे पे जाती हूँ और रिमोट एरियाज में जाती हूँ, वहाँ स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं जिस कॉन्फिडेंस से, जिस जागृति से वो बात करती हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण है कि महिलाएं अब चुप नहीं हैं, महिलाओं की चुप्पी टूट चुकी है, महिलाएं अपने अधिकार को जानने लगी हैं, महिलाएं अपने पैरों पे खड़े होकर अब देने की स्थिति में आ गई हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो माइक्रो फाइनेंसिंग हम चाहते थे, वो महिलाओं ने राजस्थान में कर दिखाया है। और राष्ट्रीय स्तर पे राजीविका ने महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से, उनकी सपोर्ट से एक अपनी पहचान बनाई। और जितने भी हम अमृता हाट बाजार में जाते हैं, किसी भी प्रदर्शनी में जाते हैं, जिस तरह से वो महिलाएं आगे आती हैं कि हमने जो है अपना छोटा सा ग्रुप बना के अपने डिज़ाइन स्किल्स लेके हमने ये बनाना शुरू कर दिया, दिए बनाने शुरू कर दिए, जूती बनानी शुरू कर दी। तो कमाना एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन इससे उनको जो इस प्लेटफॉर्म पे आके एक पीयर ग्रुप बना के, एक ग्रुप डायनामिक्स के तहत अपने इमोशंस का ताना बाना बुन के जिस तरह से उन्होंने अपने को स्वावलंबी किया है, अपने पैरों पे जो खड़ी हुई हैं, वो देखते बनता है। एक जोश, एक हुनर और एक कॉन्फिडेंस जो है वो एक अलग एक स्टेज पर पहुंच चुका है। जब स्कूल्स में हम विद्यालयों में जाते हैं तो बच्चियों की जो संख्या होती है, उठ के जवाब देना, मैथ्स के सॉल्यूशन देना, ये अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखना, जो पहले लगता था कि बच्चियां जो हैं पढ़ने से घबराती हैं या इनकरेज फील नहीं करती हैं कि हम स्कूल जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा, आज
सभी माएँ जान गई हैं कि विद्या धन से बड़ा धन कोई नहीं है, और विद्या मेरी बच्चियों को देनी इसलिए ज़रूरी है कि जो जिस मकाम पे आज वो खड़ी है माँ, उसकी बच्ची उस मकाम से बेटर खड़ी हो। ये समझ आज राजस्थान की महिला को आ गई है, और इसलिए महिलाएं अपने बच्चियों को बढ़ाने के लिए, और उनकी छोटी उम्र में शादी नहीं हो बल्कि एक उम्र, सही उम्र में शादी हो, इस बात को जान गई है। एक ऐसा कार्ड है जिसको हर योजना से लिंक किया गया है। आप अधिकतर महिलाएं और जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हुए जानते भी हैं कि राजस्थान पहला राज्य होगा जिसने एक कॉम्प्रिहेंसिव जनाधार कार्ड बनाया है, और वो जनाधार कार्ड महिला के नाम पे बनाया है। महिला को उस परिवार का मुखिया बनाया और महिला के नाम से ये कार्ड बना है। उससे उस महिला को कितनी सुखद अनुभूति होगी, उस परिवार में ये समझा जाएगा कि महिला को सम्मान और मान देने में राज्य सरकार कितनी अग्रसर है। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि जब महिला स्वावलंबी हो जाती है तो उसका परिवार ही उसकी इज्जत करने लगता है। हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है, और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। हमारे विभाग के अंदर बहुत ऊर्जा के साथ काम करने वाली हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रेया गुहा जी, हमारे कमिश्नर अमुतार मीना जी, हमारे साथ मंच पे विराजमान रोहित दास जी, श्री कुरूप जी, श्री चौधरी जी, हमारे बीच में उर्मिला राजोरा जी बैठी हुई हैं, मेघराज रत्नू जी IAS है वो बैठे हुए हैं, और हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सोशल सेक्टर में काम करने वाली हमारी बहनें, मुद्रिका धोखा जी मेरी बड़ी बहन की तरह से हैं, कमला पोदार जी, अमृता गुप्ता जो अपने आप में बहुत ही अच्छे कार्य करने के अंदर जयपुर में पहचानी जाती हैं, डॉक्टर अनुपमा सोनी जो हमारी एम्बेसडर भी हैं और फिर रही भी हैं, और अभी हमारी महिला नीति की मेंबर भी हैं, बहुत ही ऊर्जावान महिला है। मिसेस तोशनीवाल जिनको अभी हमने यहाँ पर जिनके बारे में अभी चर्चा हुई, अलका अग्रवाल हमारी एक एंटरप्रेन्योर जो हमारी महिलाओं को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म देती हैं कार्य करने के लिए, और नाबार्ड के बहुत से ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, कई बैंकर्स यहाँ पर हैं। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में करना चाहती हूँ। साथियों, ये प्रोग्राम जैसे मैडम ने कहा, CS मैडम ने, कि भाई महिला दिवस मनाया जा रहा है। मैं समझती हूँ जैसे ये कह रही मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि हम सब लोगों के लिए हर दिन महिला दिवस है। और जब मैं इस विभाग के अंदर मुझे जिम्मेदारी दी गई 2018 25 दिसंबर का वो दिन था, लगभग आज से 4.25 साल पहले मुझे आधी आबादी की एक जिम्मेदारी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दी कि जाइए कार्य करिए राजस्थान की महिलाओं के लिए, राजस्थान की बेटियों के लिए। और आज मुझे खुशी है कि राजस्थान की बेटियां न सिर्फ देश में, दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। हमारी बेटी अग्नि लेखरा जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेडल लेकर आई, वो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्टेट ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें हमारी महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। हमारा उदाहरण तो मैंने शुरुआत में ही कहा, उषा शर्मा जी बैठी हुई है, सबसे बड़ा उदाहरण। मुख्यमंत्री जी जब अशोक गहलोत जी फर्स्ट टर्म में CM बने थे 98 से 2003 के बीच में, उस समय भी उन्होंने कुशल सिंह हमारे एक सीनियर IAS ऑफिसर थी, उनको CS बनाया था। तो आप मान लीजिए कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति कितने भरोसे के साथ में राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण अयम शक्ति योजना जो 1000 करोड़ रुपए की योजना थी। उनकी सोच थी कि महिलाएं अपनी निधि के साथ में, अपने पैसे के साथ अपना छोटा छोटा व्यापार कर पाएं, अपनी शिक्षा कर पाएं, अपने स्किल्स को बढ़ा पाएं। और कोविड एक ऐसा कार्यकाल आया, पूरी देश दुनिया के अंदर आपने देखा कि किस तरह से विचित्र माहौल बन गया था। और उस कोविड जैसे कार्यकाल के अंदर हमारी अयम शक्ति योजना, अयम शक्ति निधि योजना अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुई। हमारी ऐसी गरीब घरों की बच्चियां, आज घर के अंदर भेदभाव आज भी किए जाते हैं कई परिवारों में कि अगर लड़का है तो उसको स्कूल में पढ़ाएंगे, गरीब परिवार वाले प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, और उसी घर के अंदर अगर उनके घर में बेटी है तो उसको कह देंगे कि नहीं आर्थिक कमी है, तुम पढ़ना बंद कर दो।
ये भेदभाव को देखते हुए आयम शक्ति निधि जो योजना थी, मुझे खुशी है कि कम से कम मेरे ख्याल से शायद 1 लाख से ऊपर बच्चियां जो कोविड के अंदर ड्रॉप आउट हो चुकी थी स्कूल से, उनको वापस हम लोगों ने स्कूल से जोड़ा। सरकार उनका पैसा दे रही है, उनको आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और अभी आपने कुछ बहनों की खुद की अपनी आप बीती सुनी कि उन्होंने किस तरह से आयम शक्ति निधि योजना के माध्यम से सब्सिडाइज लोन लेके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। हम सब लोगों का, आपका और हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट रहना चाहिए कि हम लोग राजस्थान की तरक्की तो करें और राजस्थान को प्रगतिशील राज्य बना पाए, लेकिन उस तरक्की और प्रगतिशील राज्य के अंदर महिलाओं की भूमिका सिरमौर हो, इस तरह का प्रयास आपको और हमको सबको मिलकर करना चाहिए। क्योंकि प्रदेश तो आगे बढ़ रहा है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं महिलाओं के पीछे ही बढ़ रहा है। आज हमारे पुरुष साथी, अभी शायद मिस्टर दास ने कहा या किसने कहा कि भाई हम तो आज माइनॉरिटी के अंदर हैं, आज ज़्यादा पुरुष कम है, महिलाएं ज़्यादा है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज नहीं, अब हर दिन ही माइनॉरिटी में है, क्योंकि हमारी आबादी तो आपके बराबर है, लेकिन आप लोग उसको आगे नहीं आने देते, पीछे रखते हैं, इसलिए दिखते आप हो, हम नहीं दिख पाते। आज आप जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो जिस भी क्षेत्र में, चाहे आप बैंकिंग क्षेत्र में कर रहे हो, चाहे किसी और क्षेत्र में कर रहे हो, जहां भी आप काम कर रहे हो, मैं समझती हूँ आप अपने घर की पत्नियों के लिए की वजह से, अपनी बेटियों की वजह से, अपनी बहनों की वजह से ही कर पा रहे हो। आप जब सुबह निकलते हो, उनका चेहरा देख के निकलते हो और एक हौसले के साथ में वो आपको सी ऑफ करती है, विदा करती है कि हाँ जाइए, आप अपने काम पे जा रहे हैं, अच्छा कार्य करके। महिलाओं को देख के निकलता है आपका दिन कितना खुशमिजाज गुजरता है हमारी बहनों की वजह से। आज हमारी जो बहनें घर में रहती हैं, जो बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे जो शक्ति है, आपको खाना बना के दे रही है, आपके परिवार को रख रही है, आपके बच्चों का ध्यान रख रही है, उससे बड़ा कार्य शायद आप ऑफिसों में बैठ के नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को सुधार रही है, हमारी नस्ल को सुधार रही है, हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर रही है वो माताएं, वो बहनें जो शायद आज बहुत सी तो पढ़ी लिखी भी नहीं। धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। आज खुशी है कि हमारी सरकार के माध्यम से महिला शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षित बनेंगे तो हर कार्य को सुचारू रूप से हम कर पाएंगे। आज अंग्रेजी माध्यम की स्कूल्स, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स गांव-गांव के अंदर खोली जा रही है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूँ और मुझे मालूम है कि गाँव की महिलाओं के दिल में रहता है कि प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, और उसी गांव के अंदर सरकारी विद्यालय भी है, स्कूल भी है, प्राइवेट भी है, लेकिन लोग पैसा खर्च करके प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। उसी गांव का बच्चा वहां पे टीचर है, कोई बाहर से नहीं आ रहा है इंग्लिश मीडियम में, और वही छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठा है, लेकिन एक दिल में ये बात आती है माँ की कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। ये सोच मुख्यमंत्री जी ने सोची और आज लगभग 1000 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान के अंदर खोली, उन गरीब लोगों के लिए, उन ऐसे लोगों के लिए, उन बेटियों के लिए। बेटे को तो प्राइवेट स्कूल के अंदर बस में भेज देंगे, लेकिन बेटी को नहीं भेजेंगे, उसको कहेंगे तू यहीं सरकारी स्कूल में गांव में पढ़ ले, क्या बनना है तुझे। ये भावना के साथ में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोली और मैं समझती हूँ ये जो नींव का पत्थर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर रखा है, आने वाले 10-15 वर्षों बाद में आपको किस तरह की एक नई ब्रीड नजर आएगी। एक होनहार बच्चे राजस्थान के निकलेंगे, जो चाहे कोई बड़े ऑफिसर बने, चाहे कोई उद्योग। और आज महिला शिक्षा अगर हम लोग कॉलेज लेवल पे देखें तो मैं मेरी विधानसभा की बात करूं, इसी प्रकार से राजस्थान में अन्य जगह भी होंगे कि हमारे यहाँ पे कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं थी। लगभग 4-4.5 लाख की आबादी है। आज मुझे खुशी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 500 बच्चियां जहां जिस विद्यालय के अंदर, जिस स्कूल में पढ़ रही हैं, चाहे वो कितनी भी ग्रामीण दूर दराज का इलाका है, अगर 500 बच्चियां उस स्कूल में है तो वहीं कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज खोली जाएगी। और इस स्कीम के माध्यम से आज 50 से ज्यादा कॉलेज हम लोग गर्ल्स की पूरे समाज के अंदर होंगे। और 14 तारीख को हमारा पुनः इसका कार्यक्रम, जिसमें हम लोग सालाना पारितोषिक देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं हमारी उन बहनों को जो विशेष कार्य राजस्थान के अंदर करती हैं। तो 14 तारीख का वो
कार्यक्रम हमारा पुनः आएगा। इसके बीच में राजस्थान के अंदर हर आंगनवाड़ी, हर पंचायत में हम लोग कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। हमारी उम्मीद है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हर योजना को जमीन पे ला सकें, उनको अमली जामा पहना सकें और जो कहा है वो करने का प्रयास करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगी कि ये बजट जो उन्होंने 23-24 का दिया है वो युवाओं और महिलाओं को समर्पित बजट था। इसमें विभिन्न प्रकार के नवाचारों से हमारी बहनों को नवाजा गया है। हमारी ताकत जुड़ी हुई है। कहीं न कहीं आप आगे बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे जो मंच पे जो लोग बैठे हुए वो अपने आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए संपूर्ण राजस्थान की महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए, संपूर्ण राजस्थान की महिला शक्ति के आन बान शान की रक्षा के लिए हम सब लोग कार्य करेंगे, उनकी मेहनत के लिए कार्य करेंगे। इसी संकल्प के साथ में आज इस महिला दिवस की पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप और हम मिलकर एक नया राजस्थान बना पाए, एक प्रगतिशील राज्य बना पाए और एक ऐसा राज्य बना पाए जो देश के अंदर अव्वल राज्यों की श्रेणी में आए। और उस श्रेणी में लाने के लिए हमारी महिलाओं डाइंग, इस तरह का जो सारा है उस पर भी हम दे सकते हैं। चर्म आधारित उद्योग, फुटवेयर, बैग्स, चर्म शोधन, रंगाई, फिनिशिंग आधारित उद्योग, वुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फर्नीचर निर्माण, पेपर प्रोडक्ट्स, मशीनरी, रासायनिक, प्लास्टिक, रबर आधारित उद्योग, इसी तरह से मशीनरी, ऑटो पार्ट्स निर्माण। पिंटू की फीस जमा करवाई कि नहीं? ओहो, ये तो मैं भूल गया। हे भगवान, अब तो सारे बैंक भी बंद हो गए होंगे और आज आखिरी तारीख है। अब क्या होगा? अरे तुम परेशान मत हो, मोबाइल बैंकिंग भीम यूपीआई से हम जब चाहे किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, माइक्रो एटीएम, मोबाइल एटीएम और बिना बैंक जाए एटीएम से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है भाग्यवान, मोबाइल बैंकिंग सीखो, सब आसान हो जाता है। अच्छा, पिंकी का जन्मदिन जो है, मतलब शहर जा रही हो? शहर नहीं दीदी, पड़ोस के गांव में। पड़ोस के गांव में एटीएम कहाँ से आ गया? एटीएम नहीं दीदी, एटीएम वैन। नाबार्ड की सहायता से बैंक अब एटीएम वैन लेकर गांव-गांव घूम रही है। और तो और एटीएम का सही उपयोग कैसे करना है वो भी लोगों को बता रही है। अरे वाह, मतलब बैंक अब घर के दरवाजे तक। वही तो। इस तरह का सफर उन्होंने तय किया है, हासिल किया है, जो हम ये मानते हैं कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से भरा हुआ है। आज महिला साक्षर है, सफल है और आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। एक छोटा सा सर्वे टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था जो सिबिल ने करा है महिलाओं के लिए, महिलाएं बोरोअर्स के बारे में उन्होंने एक रेटिंग करा है। और उस सर्वे के अकॉर्डिंग थोड़े से आंकड़े हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महिलाओं की क्रेडिट तक पहुँच, 5 साल के आंकड़े हैं ये, 2017 से 2022 तक की महिलाओं की क्रेडिट तक पहुंच, वुमेन एक्सेस टू क्रेडिट पिछले 5 सालों में 14% बढ़ गई है। मतलब 5 सालों में डबल हो गई है। 2017 में ये 7% थी, 2022 में ये 14% हो गई है। साथियों, वित्तीय समावेशन कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। ये एक गांधीवादी सिद्धांत के ऊपर आधारित है। गांधीवादी सिद्धांत है अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय, यानी समाज की सबसे कमजोर कड़ी को जब सशक्त किया जाता है तो बनता है एक सशक्त समाज। तो वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है सभी वर्गों को समान अवसर सुनिश्चित कराना, और इसी उद्देश्य का भारतीय रिजर्व बैंक निरंतर प्रयास करता रहता है। यहाँ ज्यादातर महिलाएं स्वयं सेवा या एसएचजी समूह से जुड़ी हुई हैं। तो आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि रिजर्व बैंक स्वयं सहायता समूह के एक आंदोलन में बेहद क्रांतिकारी
अपने योगदान देता हुआ आया है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे और उसकी थीम है डिजिट ऑन, दैट इज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो सर्वप्रथम मैं मैडम राजौरिया जी से जानना चाहूँगी कि इस थीम का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से कितना संबंध है, आप इस विषय में क्या सोचती हैं मैम? सारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए था, और कितनी सारी योजनाएं बैंकों की है उनसे रूबरू कराने के लिए था। ये दोनों ही प्रयास बहुत ही सार्थक रहे। तो इसके लिए मैं महिला बाल विकास विभाग को और बैंक से आए सभी प्रतिनिधियों को, अधिकारियों को इसके लिए बधाई देना चाहूँगी। ये बहुत ही सार्थक कदम था जो आज इस कार्यक्रम के रूप में यहाँ परिणति हुआ। हम सबको बहुत सारी योजनाओं की जानकारी मिली, और जहाँ तक हमने सुबह के सेशन में ये देखा कि हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को अधिक से अधिक हम जो फाइनेंस मैनेजमेंट है उससे जोड़ें। हर घर का एक फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, अभी तक यह पुरुषों के हाथ में था, और अब इसमें महिलाओं की भागीदारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो जैसे हम कहते हैं कि महिलाओं को सभी तरह की शक्तियाँ हों, महिलाओं जो शक्ति की एक प्रतीक है वह संशक्ति की भी प्रतीक है। और मैंने काम शुरू किया था अपनी नीड के लिए, कोई शौक के लिए नहीं कि मुझे वुमन एंटरप्रेन्योर बनना है। और आज यहाँ जो बच्चियाँ बैठी हैं और जो वुमन एंटरप्रेन्योर है, या जो मेरी हम उम्र महिलाएं बैठी है, वो भी आज के दिन वुमन एंटरप्रेन्योर बन सकती है। अभी थोड़ी देर पहले उषा जी ने कहा था कि हमें हमारी शक्ति के बारे में पता नहीं होता महिलाओं को। तो हम शायद हनुमान जी जैसे ही हैं कि हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती थी, तब हनुमान जी काम में लगते थे, वो भूल जाते थे अपना बल। तो हम स्त्रियां भी अपने बल को भूल जाती हैं। तो हम सब अपना बल याद रखें और ये न सोचें कि हम बहुत रिमोट एरिया से आई हैं, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हैं तो ही हम कुछ कर सकती हैं, या हमारे पास कुछ रिसोर्सेज है तो ही हम कुछ कर सकती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने शौक को, अपने स्किल को यदि प्रोफेशन बनाते हैं, चाहे किसी भी उम्र में, आप पहचाने कि आपकी जो पढ़ने की इच्छा, पढ़ना एक नॉलेज, मैं बुक के नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ स्किल की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्किल बेस्ड एजुकेशन में हूँ। खाना बनाना आता है, बागवानी आती है, कढ़ाई आती है, बुनाई आती है, सिलाई आती है, जिसमें भी आप मास्टर हैं। और अब तो इतनी सारी लोन की स्कीम आपके पास है, और अब तो स्किल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। तो ये एक चीज अपने आप को दुनिया की नज़र से या दूसरे की नज़र से न देख के खुद देखें। तो एक प्लेटफॉर्म आपका बना दिया है, मार्केट प्लेस बोलते हैं ना। पहले अगर मैं यहाँ पर एक शॉप खोलती तो सिर्फ और सिर्फ मालवीय नगर, जेल एंड मार्ग आसपास यहीं पर ही मेरे कस्टमर्स आ सकते थे मेरे पास में। आज आप इंस्टाग्राम के थ्रू, आप इंटरनेट के थ्रू पूरे वर्ल्ड को एक अपना मार्केट प्लेस बना सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद को अपस्किल करिए, खुद को अपने आप को सिखाइए और आसपास के लोगों को भी सिखाइए। आज अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, जस्ट अ स्मॉल स्टोरी अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन US। आई एम बोर्न टू अ मदर हु इज़ अ कॉप। वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी US में है। तो अगर मेरे पास में प्रेरणा मिली है, अगर मेरे पास में शक्ति मिली है, तो वो उनको देख के मिली है। उनको देख देख के मैं आज इतनी कॉन्फिडेंट बनी हूँ। तो आपका भी एक ड्यूटी है, हर नारी का एक ड्यूटी है कि आज ही नहीं, हर रोज एक जने को इंस्पायर करो, एक जने को पुश करो और एक जने को बोलो कि यस आई एम पावरफुल, यू आर पावरफुल। सो गेट अप एवरी डे एंड से द स्लोगन आई एम पावरफुल। और पुराना इतिहास में यदि हम थोड़ा और जाते हैं तो विभिन्न समय काल में परिवर्तन आए और उसको यदि आज तक हम लेके आते हैं, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 1910 से प्रारंभ हुआ और 1914 से जो है ये नियमित रूप से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि स्टॉकहोम कोपेनहेगन में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये इस बात का सामने आया कि महिलाओं के पूरे वित्तीय वर्ष में, पूरे साल के अंदर ये देखना चाहिए कि उनकी कितनी उन्नति की आवश्यकता है और कितने अभी हमें फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट जैसा मैम ने दिया, क्योंकि सहकारिता एक ऐसा बड़ा आंदोलन है जो रूरल एरिया में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। अभी जैसे हमारा व्यक्तिगत जो अनुभव ये कहता है कि अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे
स्वयं सहायता समूह की बात आई, JLG की बात आई, और बीच में राजस्थान आजीविका ऋण योजना की बात आई, और राजीविका योजना, और अभी महिला निधि बैंक जो अभी बनने जा रहा है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम करेंगे। सबसे दोस्ती मैं माँ को मानता हूँ, वही फर्क करती है बेटे मेरे बेटी में। बाप के दृष्टिकोण में इतना फर्क नहीं आता है जितना माँ के दृष्टिकोण में। बेटे को दूध मिलेगा, बेटी को छाछ देंगे। बेटे को पढ़ा दो इंग्लिश मीडियम में, बेटी को सरकारी में डाल दो। अगर स्कूल नहीं है तो घर पे रहने दो, घर का काम करेगी, वो तो पढ़ाई कर जाएगी, तो उसको पढ़ाने से क्या फायदा। लेकिन ये नहीं सोचते माँ के आपके बेटे के लिए जो आएगी वो भी किसी पढ़ाई घर से आएगी। तो हम सभी अगर बेटियों को पढ़ाएंगे, सशक्त करेंगे, तो ही पूरा समाज पूर्णता को प्राप्त करेगा। क्योंकि दोनों पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, घर का पहिया मान लो, सोसाइटी का मान लो, सब एक गाड़ी है, उस गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होने चाहिए। ज़्यादा सशक्त भी ठीक नहीं है, लेकिन बराबर तो एटलीस्ट हो। तो मेरी शुभकामनाएं। मेरा नाम संजू है और मैं बैंक सखी का काम करती हूँ, और मैंने JLG में 4 महिलाओं का समूह बनाकर उनको लोन दिलाया, उनको अपने ऊपर निर्भर बनाया, और उन्होंने उस लोन से दूध की डेयरी खोली और अपना काम चालू किया, और आज वो अपने आप में बहुत ही सम्मानजनक है। को दर्शाते हुए हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमें इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। श्रीमती उषा शर्मा जी, मुख्य सचिव का इस विशेष अवसर पर अपने उद्बोधन के लिए धन्यवाद। श्रीमती श्रेया गुहा जी, प्रमुख सचिव सहकारिता का भी इस अवसर पर महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता हेतु धन्यवाद।